In last videos, we came to know how can we prepare haloalkane by the action of hydroallylic acid on aliphatic alcohol. In such type of reaction, substitution of OH group takes place by the halide group. It means it is nucleophilic substitution reaction for the preparation of haloalkanes. Same process can we apply for the preparation of haloarenes? It means can we apply HX action on phenol? In this case, can substitution of OH can be takes place by the halide group to give haloarenes like this? Under the normal conditions, no. Under normal conditions, this reaction is not possible. Why not possible? The reason is that in case of haloarenes, by the preparation of the HX, or you can say hydrohallic acid on phenol, what will happen? Look at this. Phenol. In case of phenol, oxygen has 2 lone pairs of electrons, and its tendency to donate these lone pairs of electrons towards the conjugated system. It means OH group is plus R effect showing group. समझते हैं इसका मतलब ना? इसका मतलब क्या हुआ? These 2 electrons, or you can say electron pairs, can move toward the conjugated system. It means from group to conjugated system, such type of resonance is known as plus R effect, and such type of groups which show such type of resonance is known as plus R effect showing groups. तो OH group is what? Plus R effect showing group, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के मिड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज हो रहा है. And because of this partial double bond character, carbon oxygen bond become more stronger, which is more stronger in comparison to the carbon oxygen bond in case of aliphatic alcohols. That's why it can be break under the normal condition to give the haloalkanes, but in this case, in case of aromatic alcohols, or you can say in case of phenols, oxygen and carbon will carry double bond character due to the resonance, and this partial double bond is tough to break under the normal condition and formation of haloarenes. It means this reaction and this process cannot be followed under the normal conditions. तो देखिए, in case of haloalkane, preparation of aliphatic alcohols is by the preparation of aliphatic alcohols like this, but same process for the haloarenes we can't apply under the normal condition, but direct halogenation of phenol to give haloarenes is not possible under normal conditions. और क्यों नहीं है वो भी बताया मैंने आपको. Reason is resonance. OH group is electron donating group towards the conjugated system. It means it show plus R effect. Due to resonance, partial double bond character arise between oxygen and carbon bond, which is stronger than the carbon oxygen single bond. This is the main reason by which this process cannot be used for the preparation of the haloarenes. अब haloarenes का preparation कैसे possible है? तो preparation of haloarenes we can prepare from the aromatic hydrocarbon. We can prepare it from the diazonium salts. जब हम diazonium salt से prepare करेंगे, we will study name reactions and Mayer name reaction, Gattermann name reaction, Belshiemann name reaction, and all the name reactions are very very important. From the silver salt of acid, जिसमें हमें again name reaction करना है, it is Hundsdecker reaction. और Raschig process is used as commercial preparation of the chlorobenzene. तो हमें क्या क्या पढ़ना है? aromatic hydrocarbon से start करते हैं, diazonium salt, silver salts of acid, and then Raschig process that is used for the commercial preparation. तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से. लुक एट दिस, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी न्यूक्लियर हेलोजिनेशन पॉसिबल है और साइड चेन हेलोजिनेशन पॉसिबल है. न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली मैंने बेंजीन रिंग पर हेलोजन ग्रुप अटैच किया, इट इज नोन एज न्यूक्लियर हेलोजिनेशन. साइड चेन हेलोजिनेशन, लेट सपोज देयर इज टॉलुइन.
CH3. अब मैंने यहाँ CH3 की जगह क्या बोला, CH2Cl. It means hallucination takes place at side chain. It is known as side chain hallucination. So firstly we will discuss about the nuclear hallucination. न्यूक्लियर हेलोजिनेशन जब हम कराते हैं तो उस केस में क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन और यू कैन से क्लोरोअरीन्स एंड ब्रोमोअरीन्स ईजिली प्रिपेयर हो सकते हैं, बल्कि आयोडोअरीन्स ईजिली प्रिपेयर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में हम अभी ही बात करते हैं. वेल, क्लोरोअरीन्स एंड ब्रोमोअरीन्स का प्रिपरेशन कैसे हो, मैंने आपको पहले भी बोला था. कुछ कंडीशंस लेनी है. यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और लाइट की एब्सेंस होगी. तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड होना चाहिए. सेकेंड थिंग, टेम्परेचर लो होना चाहिए और एब्सेंस ऑफ सनलाइट होना चाहिए. लुक एट दिस. रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, in absence of sunlight and in presence of Lewis acid such as anhydrous, FeCl3, AlCl3 etc. अब यहाँ पर इनका क्या यूज है. These are act as halogen carrier. कैसे ये हैलोजन को कैरी करते हैं, कैसे, बिकॉज दीज आर लुइस एसिड और लुइस एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना. अब ये लुइस एसिड हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करके अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं. वही इलेक्ट्रोफाइल फर्दर अरीन्स पर रिएक्शन करने के बाद, एडिशन करने के बाद फर्दर हमें क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरोअरीन्स और ब्रोमोअरीन्स. मैकेनिज्म आप लोगों ने इसका लास्ट ईयर 11th में भी पढ़ा हुआ है. डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म इन नेक्स्ट वीडियो. बट अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि ये लुइस एसिड किस तरह से एक्ट करते हैं. दे एक्ट एज हैलोजन कैरियर, मीन्स दे जनरेट इलेक्ट्रोफाइल. राइट. अब आते हैं आगे, रिएक्शन कैसे हो रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, लेट सपोज बेंजीन पर रिएक्शन कर रही है क्लोरीन की इन एब्सेंस ऑफ लाइट, बट एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर यूज़ करना है एट अप्रॉक्स 310 to 320 केल्विन और यूज़ करना है एनहाइड्रस AlCl3. लेट सपोज दिस वन. तो इस केस में क्या बना, क्लोरो बेंजीन. अगर यही रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन करा दी जाए ब्रोमीन से एट लो टेम्परेचर in presence of anhydrous AlCl3, it means in presence of Lewis acids, it gives out bromobenzene. It is chlorobenzene and this one is bromobenzene. तो ये तो था डायरेक्ट न्यूक्लियर हेलोजिनेशन. बट डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, देखिए उसके लिए भी हम बात करते हैं कि डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है. मैं अगर सेम रिएक्शन कराती हूँ, तब आयोडोबेंजीन के साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, एंड HI इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. HI कैसे एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इस आयोडोबेंजीन को फर्दर रिड्यूस कर देता है बेंजीन में. दैट्स क्लियर. HI that is produced as a byproduct during the reaction. अब ये एक्ट करता है reducing agent. It means it will reduce iodobenzene further to benzene. It means हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है. तो हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन को किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होगी. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या ले सकते हैं, जस्ट लाइक HNO3, HiO3 एक्सेट्रा, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. लेट सपोज अगर मैंने HiO3 यूज़ किया है और HiO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, देन व्हाट विल हैपन्स, HiO3 रिएक्ट विद HI टू गिव आयोडीन और रिएक्शन फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. तो यहाँ पर HiO3 का जो यूज़ है, HiO3 का यूज़ किस लिए यूज़ किया गया है, टू रिएक्ट विद HI. देखिए कैसे, HiO3 react with HI to gives out iodine and H2O.
रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं. Balanced reaction, this one. This is balanced reaction. In this case what happens? इसका क्या यूज रहा? विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसने क्या किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने जो HI मतलब हाइड्रोएडिक एसिड बन रहा था उसके साथ रिएक्शन करने के बाद आयोडीन ही बना दिया फर्दर. इट मीन्स रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव होगा? फर्दर से अगर हमारे पास रिएक्टेंट कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ली शेटियर प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज इट्स मीन रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर? आयोडोबेंजीन. तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है. देखिए लुइस एसिड एक्ट करते हैं यहाँ पर हैलोजन कैरियर. इट इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड द ब्रोमोबेंजीन जो अभी हमने बात की. आपको यहाँ पर ये दोनों ही रिएक्शंस यूज़ करने हैं. एंड देन बट डायरेक्ट आयोडिनेशन इज़ नॉट यूजफुल. वाई नॉट? HI इज़ फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. एंड HI एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस बैक आयोडोबेंजीन टू बेंजीन. तो हमें क्या करना होगा? सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट लाइक HNO3, HiO3 which react with HI and reaction proceed in forward direction like this. जैसे हमने इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ किया है which react with reducing agent and further क्या बना रहा है? आयोडीन. further reaction will proceed in forward direction. again मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देती हूँ इस रिएक्शन को. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने बेंजीन का रिएक्शन आयोडीन से कराया है at 310 to 320 Kelvin or in presence of anhydrous AlCl3, it gives out iodobenzene with the formation of HI and HI act as reducing agent. It means it reduces iodobenzene further to benzene. It means we need any oxidizing agent just like HiO3. Now what this will do? HiO3 react with this reducing agent like this and gives out iodine and H2O, this one, and reaction will proceed in forward direction. Now you will write reaction in such manner because it is equilibrium condition. HiO3, now it gives out what? Iodobenzene. In such manner you will write this reaction. अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन. साइड चेन हैलोजिनेशन मीन्स बेंजाइलिक हैलोजिनेशन. अभी यहाँ पर बेंजाइलिक का मतलब क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करना है. अभी बेंजाइलिक पोजीशन, डू यू रिमेंबर व्हाट इज बेंजाइलिक पोजीशन? हमें ये याद होना चाहिए. अगर बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो हम इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक. रिमेंबर दैट. इसका मतलब जो हैलोजिनेशन होगा वो कहाँ पर होगा? बेंजाइलिक पोजीशन पर होगा. इसलिए हमने इसे क्या बोला? बेंजाइलिक हैलोजिनेशन बोला. ये बात हम बात कर चुके हैं, बेंजाइलिक पोजीशन की बात कर चुके हैं जो हमने नॉमेनक्लेचर किया था. और साथ के साथ हमने ये भी जाना था किस किस टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. मीन्स क्लासिफिकेशन के टाइम पे भी हमने बेंजाइलिक हैलोजिनेशन के बारे में बात की थी. वेल क्या बनता है साइड चेन हैलोजिनेशन से? सबसे पहले तो बात करते हैं एर एल्काइल हैलाइड्स विल बी फाउंड. मतलब यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप भी होगा, एराइल ग्रुप भी होगा और हैलाइड ग्रुप भी होगा. इट मीन्स एर एल्काइल हैलाइड्स. एर फॉर द एरोमेटिक, एल्काइल फॉर द एलिफेटिक हैलाइड्स. एर एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड. रिएक्शन होती हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी हैलोजन कैरियर की नीड नहीं है. इट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड एंड लुइस बेस. तो क्या ध्यान रखना है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर. अब वन मोर थिंग, अगर साइड चेन 1 कार्बन से लार्जर है, लेट सपोज मैंने बोला ये तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, मैंने बात की दिस वन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, बेंजाइलिक पोजीशन. लेकिन अगर ये साइड चेन मोर देन मिथाइल ग्रुप है, मोर देन 1 कार्बन है, तब क्या होगा? लेट सपोज मैं बात करती हूँ दिस वन CH2 CH3. अब किस पोजीशन पर, कौन से कार्बन पर रिएक्शन होनी चाहिए, कौन से कार्बन पर हैलोजिनेशन होना चाहिए? अगेन हैलोजिनेशन विल टेक्स प्लेस एट बेंजाइलिक पोजीशन. इट मीन्स दिस कार्बन. वाई?
बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन हमें पता है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में, इसका मतलब फ्री रेडिकल पोजीशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होना चाहिए. अब फ्री रेडिकल में भी हमें ये देखना होता है कि कौन सा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है. डेफिनेटली मैकेनिज्म में वही हमें मेजर प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा. तो बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर कार्बन, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. अगेन अगर यहाँ पर हम हेलोजन को ज़्यादा देर तक, मीन्स अगर हेलोजन कैरियर या हेलोजन की प्रेजेंस हम मोर टाइम रखते हैं तो खाली एक ही पोजीशन पर एक ही हाइड्रोजन का हेलोजनेशन नहीं होगा. बेंजाइलिक कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी हेलोजन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. बात करते हैं इस बारे में डिस्कशन करते हैं. हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टॉलुइन से. लाइक दिस, लेट्स सपोज टॉलुइन की रिएक्शन कराई क्लोरीन से एट 383 केल्विन और लाइट की प्रेजेंस में. फर्स्टली व्हाट विल हैपन, CH2Cl मीन्स दिस पोजीशन मीन्स बेंजाइलिक कार्बन पर हेलोजिनेशन प्रोसीड हुआ. इसने बनाया बेंजाइल क्लोराइड. बट ये रिएक्शन हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं. इट मीन्स हेलोजन इज यूज फॉर द लॉन्गर टाइम. अगर हेलोजन लॉन्गर टाइम के लिए यूज हो रहा है तो मोर हाइड्रोजन कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय हेलोजन. इट मीन्स नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, CCl2H. इट मीन्स इट इज बेंजल डाइक्लोराइड. ये बनता है बेंजल डाइक्लोराइड. फर्दर अभी हमने क्या देखा कि अगर आप मोर टाइम हैलोजेंस को यूज़ कर रहे हो तो मोर हाइड्रोजन्स विच आर प्रेजेंट एज बेंजाइलिक कार्बन कैन बी सब्सटीट्यूटेड. बट अभी वन मोर बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. और अगर और टाइम के लिए हैलोजन पास किया जाए, रिएक्शन कराई जाए, इट मीन्स फर्दर सब्सटीट्यूशन कैन टेक्स प्लेस टू गिव्स आउट बेंजो ट्राइक्लोराइड. Now do you understand ki what I want to tell you? I want to tell you, first of all, reaction will proceed at benzylic carbon. Second thing I am saying that if halogen is applied for more time, then all the benzylic hydrogen can be substituted with the help of halogen. तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी. अब हम बात जानते हैं अगर longer chain means longer than the one carbon atom chain present है, उस केस में क्या होगा. लेट सपोज मैं बात करती हूँ इथाइल बेंजीन की, CH2CH3. अगर यहाँ पर क्लोरीन गैस पास किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज CHClCH3. अब halogen can be substituted, मतलब hydrogen can be substituted by the halogen at position this one and this one both. But this is benzylic carbon. Reaction will proceed at benzylic carbon. It means substitution will proceed at benzylic carbon. And I tell you why. Because in presence of light, what will proceed? Free radical mechanism will proceed and benzylic free radical will be more stable. Because यहाँ से एक resonance भी effect आ रहा है. ठीक है, तो जिसकी वजह से बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा और मोर स्टेबल होने की वजह से वही मेजर प्रोडक्ट देगा. फर्दर अगर मैं यही हैलोजन मोर टाइम के लिए पास करती हूँ, देन व्हाट विल हैपन, वन मोर बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. इट मीन्स इट विल फर्दर सब्सटीट्यूटेड टू गिव आउट व्हाट, दिस वन. What is this? What its name? It is 1-chloro 1-phenyl ethane. 1-chloro 1-phenyl ethane. और इसकी नेम की बात करते हैं तो 1,1-dichloro 1-phenyl ethane. So you have to remember that in benzylic halogenation, what you have to remember कि air alkyl halides will be formed. Second thing is that presence of sunlight and absence of halogen carrier. और position क्या होगी, benzylic position पर ही substitution होगा. तो halogenation कहाँ होगा, benzylic position पर होगा. अगर halogen more time के लिए यूज़ किया जाता है तो all the benzylic hydrogens will be substituted by the halogen.
फर्दर नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सल्फ्यूराइल क्लोराइड. सल्फ्यूराइल क्लोराइड अगेन इट इज़ यूज्ड फॉर द साइड चेन हैलोजिनेशन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन फिर से प्रेजेंस है लाइट की और पेरोक्साइड की. लेट सपोज मैंने रिएक्शन कराया टॉलुइन का रिएक्शन कराया सल्फ्यूराइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पेरोक्साइड. देन व्हाट विल हैपन्स, side chain hallucination. Further, what will proceed? Side chain hallucination with the evolution of the SO2 and HCl gases. This one. This is with the sulfuryl chloride. Sulfuryl chloride के साथ भी side chain hallucination proceed होगा. Next बात करते हैं from diazonium salts. अब diazonium salts क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो यही पता होनी चाहिए डायज़ो ग्रुप क्या होता है. हमने कहा this is benzene डायज़ोनियम क्लोराइड. यहाँ पर जो ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन नज़र आ रहा है दिस इज़ डायज़ो ग्रुप. अब ध्यान रखोगे बेंजीन से अटैच्ड है डायज़ो और क्लोराइड, इसलिए हमने इसका नाम दिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. अब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ क्लोराइड है, सल्फेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है. हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया हुआ है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यूज़ करते हुए हम कैसे हैलोअरीन्स का प्रिपरेशन करते हैं. सबसे पहले नेम रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसके थ्रू हम क्लोरो एंड ब्रोमो अरीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. कैसे करना है, देखिए नेम रिएक्शंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और नेम रिएक्शंस के लिए हमें रिएक्टेंट रिएजेंट दोनों ही सेपरेटली पता होना चाहिए. तो हमें रिएक्टेंट तो पता लग गया कि हमें रिएक्शन किसके साथ कराना है, डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ कराना है, बट किसकी प्रेजेंस में कराना है तो वो आपको याद रखना है. सेंडमेयर रिएक्शन में रिएक्शन होती है क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr. अगर क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते हो तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr लेते हो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा या अरीन बन जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. क्लोरोरीन्स एंड ब्रोमोअरीन्स आर फॉर्म्ड. Benzene diazonium salt react with cuprous chloride in presence of HCl, cuprous bromide in presence of HBr. देखिए क्या करना है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराना है. हमने यहाँ लिया है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. अगर मैंने ये रिएक्शन कराया है क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इट गिव्स आउट क्लोरोबेंजीन. ठीक है. और अगर यही रिएक्शन कराया है क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, इट गिव्स आउट ब्रोमोबेंजीन. इट मीन्स by Sandmeyer reaction we can prepare both chlorobenzene and bromobenzene. Reagent used is cuprous chloride in presence of HCl and cuprous bromide in presence of HBr. You have to remember this. और reactant क्या रहा, this is the benzene diazonium salt. हमने यहाँ लिया हुआ है benzene diazonium chloride. Okay. Now come to the next. आयोडो अरीन्स. हमें प्रिपरेशन करना है आयोडो अरीन्स का. तो आयोडो अरीन्स के प्रिपरेशन के लिए अगर हम डायरेक्टली बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा दें KI की प्रेजेंस में, एक्वस KI की प्रेजेंस में हीट करके, तो आयोडो बेंजीन प्रिपेयर हो जाता है. इट्स टू सिंपल. आयोडो बेंजीन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की वार्मिंग कर दें, वार्म कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KI, इट विल गिव्स आउट आयोडो बेंजीन. नाउ अगेन नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन. अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस है. यहाँ पर हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, बस गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर यूज़ करना है. ठीक है. फर्दर इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमोअरीन्स और यहाँ हमें क्या रिएजेंट यूज़ करना है, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर द क्लोरोबेंजीन या क्लोरोअरीन्स एंड कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr फॉर द ब्रोमोअरीन्स. लुक एट दिस. क्लोरो एंड ब्रोमोअरीन्स कैन बी फॉर्म्ड. कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr इज यूज्ड. अगेन देखते हैं कैसे. इट इज़
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, हमने रिएक्शन किया कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इट गिव्स आउट क्लोरोबेंजीन। और अगर हमने यही रिएक्शन किया कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, इट गिव्स आउट ब्रोमोबेंजीन। तो इट इज़ टू सिंपल, बस ध्यान रखना है सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस याद रखोगे, रिएजेंट में चेंज है। इन सैंडमेयर रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ किया गया है, जबकि गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर यूज़ किया गया है। Now come to the next Balch-Schiemann reaction, and again it is name reaction, very important name reaction, and it is used for the preparation of fluoroarenes। देखिए पहली बार आ रहा है ना यहाँ पर, अभी आज की वीडियो में हम फ्लोरोअरीन फर्स्ट रिएक्शन में बना रहे हैं, दैट इज़ द Balch-Schiemann रिएक्शन। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किससे बनाएंगे ये हम? अगेन डायजोनियम सॉल्ट्स। जब हम बात कर रहे हैं डायजोनियम सॉल्ट्स की, this is benzene diazonium tetrafluoroborate, this is benzene diazonium tetrafluoroborate, it is benzene diazonium tetrafluoroborate। जब इसे हीट किया जाता है it gives out fluorobenzene with the evolution of nitrogen gas and BF3। So you have to remember, if fluoroarenes you have to prepare, then reaction will takes place by the benzene diazonium tetrafluoroborate। When we heat benzene diazonium tetrafluoroborate, it gives out fluorobenzene। Now next is Raschig process। Raschig process is the commercial preparation for the chlorobenzene। किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन का। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बेंजीन वेपर्स को पास किया जाता है एयर और HCl के थ्रू, और हम हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड पर पास करते हैं ये सब चीज़ें। क्या क्या किया, मिक्सचर लिया, किस किस का मिक्सचर लेना है, बेंजीन वेपर्स का, एयर का, HCl का, और हमें उसे पास करना है क्यूप्रिक क्लोराइड के थ्रू, हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड के थ्रू। तो देखो क्या क्या लेना है हमें, बेंजीन, एयर का मतलब ऑक्सीजन, HCl, और हमें पास करना है क्यूप्रिक क्लोराइड विच इज़ हीटेड। तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन विद द एवोल्यूशन ऑफ H2O। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन। दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। इट इज़ द कॉमर्शियल प्रिपरेशन फॉर द क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कॉमर्शियल प्रिपरेशन किस नाम से प्रोसेस है, किस नाम से फेमस है? रशिक प्रोसेस। और रशिक प्रोसेस मीन्स हमने क्या क्या पास किया है, यू हैव टू रिमेंबर, मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर्स, एयर, HCl। किसके थ्रू करना है? हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड के थ्रू करना है। नाउ नेक्स्ट इज हुंडस्टिकर रिएक्शन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद आ रहा है, जब हमने एलिफेटिक, एग्जैक्टली, जब हमने क्या बनाया था, राइट, हेलो एल्केन्स। अब हम बात कर रहे हैं हेलो अरीन्स की। वहाँ पर हमने क्या लिया था, सिल्वर साल्ट ऑफ एलिफेटिक एसिड, और हम यहाँ क्या लेंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। बहुत ही बेहतर। देखिए वहाँ पर भी हमने ब्रोमो एल्केन बनाया था, और यहाँ पर भी हम क्या बनाने वाले हैं, एराइल ब्रोमाइड्स। एराइल ब्रोमाइड्स आर फॉर्म्ड। सेम प्रोसेस है, सिर्फ हमें क्या लेना है, सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड लेना है। वहाँ हमने सिल्वर साल्ट ऑफ एलिफेटिक एसिड का रिफ्लक्स किया था ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सेम प्रोसेस हम यहाँ करने वाले हैं, रिफ्लेक्सिंग करने वाले हैं विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, बट रिफ्लक्सिंग हमें करना है सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड की। लुक एट दिस, रिफ्लक्सिंग सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। हमने लिया है सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ब्रोमीन की प्रेजेंस और CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करते हैं, इट गिव्स आउट ब्रोमोबेंजीन with the evolution of CO2 and AgBr. It was the Hunschiker reaction. तो आज हमने बात की है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स,
और हेलोअरीन्स का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज़ किया था, यहाँ पर हमने लुइस एसिड और लुइस जो एक्ट करता है एज हेलोजन कैरियर। लुइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, और जब लुइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब क्लोरो एंड ब्रोमो अरीन्स के फॉर्मेशन हो सकती है। हमने पढ़ा डायजोनियम सॉल्ट। हाँ, हमने हाइड्रोकार्बन के केस में ये भी जाना कि डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है, आयोडो अरीन्स नहीं बन सकता, और उसका रीज़न ये भी जाना था HI इज फॉर्म्ड एंड विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस आयोडोबेंजीन बैक टू द बेंजीन, दैट्स वाई। तो हमने रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। हमने नेक्स्ट पढ़ा डायजोनियम सॉल्ट्स की प्रेजेंस में सैंडमे रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन एंड बेल-शीमन रिएक्शन। सैंडमे रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराया था क्यूप्रस क्लोराइड in presence of HCl to give chlorobenzene, cuprous bromide in presence of HBr to give bromobenzene. गेटरमैन में बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराया कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl to give chlorobenzene, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr to give bromobenzene। अब बेल-शीमन रिएक्शन में हमने बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को हीट किया टू फॉर्म फ्लोरोबेंजीन या फ्लोरोअरीन्स। तो सैंडमेयर एंड गेटरमैन के थ्रू क्लोरो एंड bromoarenes can be formed, and Bell-Schemen के through fluoroarene can be formed. You have to remember. Silver salt of aromatic acid, Horn's-Jacob reaction. It is again for the preparation of bromobenzene. Reflux किया गया by bromine in presence of CCl4। रिफ्लक्स किसका करना है? सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड का। तब हमें क्या बन जाता है, क्या मिल जाता है? ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमारीन का प्रिपरेशन होता है। रेशिक प्रोसेस, इट इज़ कॉमर्शियल प्रिपरेशन फॉर द क्लोरोबेंजीन, जिसमें आपने बेंजीन वेपर, एयर और HCl को पास किया है क्यूप्रिक क्लोराइड से हीटेड। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? क्लोरोबेंजीन। So it was flowchart for the preparation of haloarenes. In next video we will talk about the next topic. Till then, goodbye.